gave us the love and the affection, all castes and creeds, everyone came together. It was one stupendous effort, and it is paid. Just a little bit, if we look at the dynamics in Rajasthan and how it's panned out. But you did work on Eastern Rajasthan, you did work on Barmer. What was... No, I mean, I think each one of these areas have a different sort of thinking, and we approached it with that in mind. We were very clear that we were not going to speak about anyone. We were very clear that we were going to motivate our workers. We were very clear that we were going to speak directly to each booth. And I don't think that's been done before in most of these elections. Each booth gave us their results. So it's not just a top effort. It goes right down to the booths. And that's what's paid off. Little while ago when I was talking to you, you said something that people know what they want, and it's actually quite a humbling experience. Very humbling. This is an extremely humbling experience. In fact, somewhat even terrifying. Because when people have this kind of faith in you, you know that you have to make every effort to deliver. And I promised everybody right through this, because now it's been for me 1 year on the road. I started my yatra last year in April 2013, and it's now May 2014. And everyone, I believe hard work pays off. People saw the work. People believe that I believed in them. And we chose to work together to get this far. But it's a hugely humbling experience because now we have to make every effort to see that we deliver and that people are not disappointed. Just one last... But I have to tell you, Harsha, there is very little time. And it doesn't, I mean, that kind of time sometimes makes you really nervous. Because this whole year is going to go in elections and the Achar Samhita. And 6 months before the election it does. So if you take away 1.5 years, 3.5 years of solid hard work, which I plan to get down to do. Just one last question. I was never a top type leader. As far as I'm concerned, I'm happiest at the grassroots level. I interact with them and I understand them because from childhood we've been working with them because of my mother. It's something that I've learned to do from them. And I am the happiest there. And in this 1 year, I think I've had the best experience of my life. And also the worst, because I saw that in 60 years, it should have changed. Because if Mr. Modi could do it in Gujarat in 15 years, after 60 years of one-party rule, to know that you don't have water, electricity or roads in an area is quite shocking. So that was what... मैं क्रिकेट नहीं खेलती और मेरा स्ट्राइक रेट नहीं है, ये मेरी जनता का स्ट्राइक रेट है, ये मेरे कार्यकर्ताओं का स्ट्राइक रेट है। वो 36 के 36 कौम जिनका मैंने बार बार इस 1 साल के अंदर आह्वान किया, उन सब का स्ट्राइक रेट है, ये टीम राजस्थान का स्ट्राइक रेट है। मैम, क्या वजह रही है एक्चुअली जो विक्ट्री है उसकी क्या क्या रीजंस हैं? देखिए, 65 साल निकल गए एक छत्र राज का। कांग्रेस का राज राजस्थान के अंदर 53 साल रहा है, अगर आप मेरा राज और भैरव सिंह जी का निकाल लें। मोदी जी ने 15 साल के अंदर गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। जनता पूछती है कि 53 साल एक परिवार को देने के बाद, एक पार्टी को देने के बाद, क्या आज भी हमको पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए तरसना पड़ रहा है? क्या आज भी हमारे गांव के जो हालात हैं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो ऐसी परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ रहा है? तो 60 साल और लॉयल्टी, उसका क्या हमको मिला? उसके एवज में हमको क्या मिला? बस एक मेरा आखिरी सवाल है कि आपने एक तरह से इस्टेब्लिश कर दिया है कि आप एक ग्रास रूट्स लीडर हैं। आपका फर्स्ट टेन्योर के बाद में काफ़ी लोग थे जो चाहते थे कि आपको एक दरकिनार कर दें, लेकिन आपने एक अच्छे से मुकाबला करके एक स्ट्रैटेजी अपना के आज आपने 25 से 25 सीट लेके आए हैं। अर्षा जी, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बचपन से हमने राजमाता साहब के साथ, मेरे भाई के साथ यही सीखा। हम बचपन से ये काम करते आ रहे हैं और मेरी सबसे ज़्यादा खुशी है क्योंकि जनता के साथ रहना, क्योंकि वो आर्टिफिशियल नहीं है, उनके अंदर जो है, जो मन का भाव है, वो सीधे सीधे आपसे बात करते हैं, कपट नहीं है। और इनके साथ रह के इनका काम करना, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे खुशी और संतुष्टि है। तो ये जो 25 सीटें, इसका श्रेय किसको देंगे आप? मैंने कहा मेरी टीम राजस्थान। थैंक यू। सुमित्रा जी, आपने डबल धमाका किया है, पहले विधानसभा में, अब लोकसभा में। मैंने नहीं किया है, ये टीम राजस्थान का काम है, जिसमें मेरी पूरी जनता और पार्टी के कार्यकर्ता और जिन लोगों को मैं 1 साल से कहते आ रही हूँ, 36 के 36 कौम के जो लोग हैं, उन सब ने जो सपोर्ट दिया, और ये सपोर्ट दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि इतना सपोर्ट कांग्रेस को देने के बाद उसकी एवज में हमें कुछ नहीं मिला, तो उन लोगों ने हमको जुट के सपोर्ट किया।
और मैं उनकी आंखों में खरा उतरना चाहती हूँ, इसलिए मेहनत में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। ऐसा क्या कांग्रेस ने किया था कि 25 से 25 सीटों से जनता ने घर भेज दिया उन्हें? ये एक साल की जो यात्रा है, अप्रैल 2013 में निकली थी, अब मई 2014 हो गया है। लगातार पूरे राजस्थान के अंदर मैं घूमी हूँ। जब मूलभूत सुविधा 60 साल के अंदर हमको नहीं मिल रही, जब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, तो क्या जनता चाहे? तो 65 साल में हम उनको ये नहीं दे पाए। बीजेपी ने अपने बूते देश में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। आपसे पिछली बार बात हुई तो आप कह रही थी कि 77 जैसी लहरें थी, उससे भी ज़्यादा लहर पूरे देश में नजर आई। हम 77 में थोड़े से छोटे थे उम्र में, तो मुझे उतनी याद नहीं है, परंतु जो मैं यहाँ देख रही हूँ एक अलग से कमाल। वसुंधरा राजे को लेकर राजस्थान में एक क्रेज है, जहाँ भी जाती हैं लोग देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, एक बार लोग बातें सुनते हैं। क्या लगता है, क्या वजह है कि आप अचानक से राजस्थान में इस तरह छा गए लोगों के दिल पर? अगर झूठ नहीं बोला ना लोगों को, तो लोग दिल से जुड़ते हैं। अगर राजनीति करो उनके साथ, तो ये भी बात खुले में आ जाती है। जब खुले में आ जाती है फिर लोग घृणा करते हैं, लोग प्यार करते हैं। अगर आप उनको सच बोल दो, ये भी कह दो कि मैं नहीं कर सकती हूँ, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, कोशिश में हम कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भी लोग जुड़ेंगे। अभी 53 साल हो गए, एक छत्र राज, एक परिवार का राज, और उसके बाद भी कोई चेंजेस नहीं, क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा? लेकिन इतनी बड़ी जीत से जिम्मेदारी भी काफ़ी बढ़ जाती है, सेंट्रल में भी और आप पर भी काफ़ी जिम्मेदारी है। 163 सीट, अब यहाँ पर 25 सीट। जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ती है, और मैं तो उससे डरती भी हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इतना बड़ा विश्वास दिया है, इतना सारा प्यार दिया है, तो उस पर तो खरे उतरना है। तो इसका मतलब ये है कि अगले समय के अंदर मैंने काम में कोई कमी नहीं छोड़ दी। जितनी मेहनत कर सकती हूँ, मैंने सबको वादा किया है कि मैं करूँगी। ये थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा जी, you have made record in Rajasthan by winning all 25 seats. I haven't. My team has. Team Rajasthan has actually the workers of the party who worked really, really hard. The people across the state. And those people, you know, who I said belong to every single caste and creed across Rajasthan over the year who I met and who I spoke with. Everyone together has decided that they want development. They want to vote for development. They believe that Mr. Modi brought that development, and therefore they want them to connect themselves with that development. What worked well for Rajasthan? The fact that we told the truth, the fact that they have seen me work before, so they know that she does work hard and she does try. She doesn't promise things which she can't do. She says she'll try. And I have always told them the truth, and as today also I say, I'm going to do my best to live up to their expectation. Vehement victory has brought responsibility on you. Yes, I've just told you that. It's a huge responsibility, and we have to work very hard to live up to it. Thank you. Hello. हमारे साथ है राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा जी, विधानसभा और फिर अब लोकसभा, डबल धमाल। राजस्थान के टीम का काम है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, कितना भी वो अपना श्रेय लेना चाहे। ये श्रेय है हमारे राजस्थान की जनता, उनका, हमारे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मेहनत, अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत की, और सब 36 के 36 कौम जो हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने प्रेम दिया और आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये हिस्ट्री है, राजस्थान में पहली बार क्लीन स्वीप किया बीजेपी ने, इसकी कल्पना थी? हाँ थी, मैंने आपको कहा था सबको कि ये है मिशन 25, और इस मिशन 25 के लिए हम पूरा करके छोड़ेंगे। और हमने हवा में नहीं कहा था आपको, हमने इसलिए कहा था क्योंकि हमने मेहनत की है। 1 साल से हम सड़क पे हैं, गर्मी में, सर्दी में, लू में, ठंडी में, जनता के साथ घूमे हैं, देखा है, और मेहनत हमेशा फल लाता है। जब आप विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तब लोग कहते हैं फाइट में रहेंगी, आएगी, इतनी मेजोरिटी नहीं मिलेगी। विधानसभा चुनाव में हुआ, लोकसभा के अंदर भी लोग कह रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि महिला हूँ, हो सकता है कि सीरियसली शायद नहीं लिया जाता, परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता ने सीरियसली लिया, और जनता ने कहीं भी, कार्यकर्ताओं ने कहीं भी इसमें कमी नहीं छोड़ी। अब आप पे दोहरी जिम्मेदारी है, आपके पास में इतने सारे MLAs हैं,
अब उस 25 MPs भी हैं। बहुत मेरे को चिंता तो होती है, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ साथ आपको अपना काम भी दिखाना पड़ता है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना सारा प्यार दिया है कि उसके लिए तो खड़े उतरने के लिए जितना काम करने की ज़रूरत होगी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। देश भर में इतनी बड़ी लहर, क्या इसकी उम्मीद की थी? वजह क्या देखते हैं आप इसकी? देखिए, जनता ऊब चुकी है उन लोगों से जो उनके साथ राजनीति करते हैं, और राजनीति के अंदर खरी खोटी बातें करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि आज के नए पॉलिटिशियंस ऐसे लोग हों जो सीधी सीधी उनसे बात करें और उनको अपने परिवार जैसे माने और उनके भले के लिए काम करें, और जब कहते हैं कि हम ये काम करने वाले हैं तो उसको पूरा करें। खाली पॉलिटिक्स के लिए वादे करने से या डोल देने से वोट नहीं आते। कड़ी से कड़ी जुड़ी है राजस्थान की अब दिल्ली से, उसका फ़ायदा होगा। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो कड़ी से कड़ी मैंने पहले भी देखा, परंतु हाँ, राजस्थान में दो परिवार, ये पूरा एक परिवार है जिसका एक हिस्सा दिल्ली में है और एक हिस्सा राजस्थान और अलग अलग स्टेट्स के अंदर है। मैं तो पूरा ये विश्वास करती हूँ कि राजस्थान का लाभ होगा। राजस्थान का ही अकेले नहीं, सब स्टेट्स जिनको आज तक एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जाता था यूपीए से, हमको सबको बाहर खड़ा रहना पड़ता था, हमको डोल की तरह से लोग दिया करते थे पैसे, जो हमारा राइट था। मैं मानती हूँ कि आज मोदी जी की सरकार आने के बाद, क्योंकि वो खुद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये स्थिति हम स्टेट्स के साथ नहीं होती। एक अंतिम सवाल, ये जो जनमत मिला है, आपको लगता है कि यूपीए के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, या नरेंद्र मोदी का जिस लहर की बात की जा रही वो थी, या फिर बीजेपी को लोग देखते थे आसानी में? देखिए, ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा एक साथ जोड़िए और इसको भी डिनाया मत करिए कि नरेंद्र मोदी जी की एक अच्छी माने ताकतवर लहर थी और वो लहर अपना काम कर गई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर इस दूसरा, आपको लगता है ये जो 25 सीटें आपने कहा कार्यकर्ताओं के नतीजे का और उनकी मेहनत का परिणाम है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका करिश्मा बता? नहीं, मैं मानती हूँ कि मैं तो निमित्त थी, मुझे तो उनने आगे रखा था, और आगे तो रहना मैंने किसी को तो है ही। इनने सबने जुड़ के जो काम किया वो अकेला कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता था, और एक व्यक्ति के बलबूते पे चलते तो मैं नहीं समझती कि कुछ आगे बढ़ सकता था। तो इसलिए मैं तो हमेशा उनको ही रह रही हूँ, मेरे को निमित्त बना के रखा, हम सब ने मिलकर ये काम किया। मैडम, मोदी जी ने 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का हवाई सफ़र किया और आपने भी लगातार यात्राएं की। आपको लगता है कि जितना आप लोगों से घूम घूम कर मिले उसका कहीं ना कहीं इस चुनाव में फायदा? मिलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली लोगों से मिलने से नहीं होता, ये एक किस्म से ज़रूरी भी था कि हम देखें कि राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ बैठे बैठे हम कुछ और सुनते थे, परंतु जब ज़मीन पे जाके देखा तो वो जो चीज़ें यहाँ सुनते थे वो तो कहीं भी देखने को नहीं मिला। हम यहाँ सुनते थे कि इतना अच्छा काम हो रहा है, दवाइयों का काम हो रहा है, सड़कों का काम हो रहा है, बिजली का काम हो रहा है, पानी का काम हो रहा है, परंतु जब वहाँ गए तो सब ज़ीरो थे और जनता में रोष था। ये अगर यहाँ बैठते तो हम देख नहीं पाते। ये ज़रूरी था कि एक दफ़ा लोगों से मिल के, आँखों में आँख डाल के, उनके दुख में उनके सुख में शरीक होने का एक मौका मिले, उससे सीख के हम यहाँ वापस आके कैसे उसको बदल सकते हैं, कैसे मौका मिले तो उसको उसमें बदलाव ला सकते हैं, उस एक देखने का और सोचने का और प्लान बनाने का मौका मिला। मैडम, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो खास कुछ सीटें सीकर, बाड़मेर, दौसा, इनको लेकर के जब आपने कैंडिडेट चुना तो लोगों ने कई तरीके की बातें कही। आज आपको लगता है कि आपने उन तमाम लोगों को भरपूर जवाब दिया? नहीं, मैंने जो किया वो अकेले मेरा चॉइस नहीं था। हमने तो इस बार एक बहुत बड़े पैमाने पे विचारों का आदान प्रदान किया। हमने तो अपने कार्यकर्ताओं से शुरू किया। आपने देखा था, हम तो धौलपुर में, रनकपुर में, जयपुर के अंदर कार्यकर्ताओं को बुला के हम लोगों ने उनसे चॉइसेस लिए, उनको एक्चुअली लाइक अ प्राइमरी उनसे एक्चुअली वोटिंग करवाया। बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकल के आई जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। फिर हम लोग सबने अपना रिव्यू डाला और फिर 2-2 सर्वेस भी थे, तो उन सबको मिलाने के बाद जो राय उसमें से निकली उसको हमने टेबल पे लाया और उसी को हमने टिकट दिया, और आप देख सकते हैं कि वो सक्सेसफुल रहा। ये ज़रूरी है कि कार्यकर्ता भी मैंने आप उसको भी जोड़ें
तभी ऐसा फ़ायदा मिलता है। अकेले बैठ के जैसे कांग्रेस ने किया, उसका भी नतीजा आपको देखने को मिला। मैडम अब इतने सारे पदाधिकारी और हो गई और अवार्ड पाने वाले जो होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे, समस्या तो आएगी। लेट अस फेस द सिचुएशन व्हेन इट कम्स। अब जब आएगा मौका तब देखा जाएगा। अभी अपन हाइपोथेटिकली सोचें कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैम दूसरा आपने कहा कि कांग्रेस की जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने हमेशा भेदभाव किया राजस्थान के साथ, उनके हितों पर हमेशा कुठाराघात किया। राजस्थान के साथ किया, हमने एनडीसी में बार बार पिछले टाइम में जब हम मुख्यमंत्री थे उस समय भी हमने उठाया, और हमारे साथ ही नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स के, मैंने जनरली स्टेट्स के साथ भी किया। हम लोग भुगते हैं, तो इसीलिए हमको भी बहुत खुशी है कि अब सरकार बदली है। होपफुली स्टेट्स को भी मौका मिलेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि स्टेट स्ट्रांग होती हैं तो सेंटर भी स्ट्रांग होता है। एक आखिरी सवाल मैम, राजस्थान ने जो परफॉर्म किया है, गुजरात और दिल्ली ने वैसा किया, 100% विक्ट्री, तो ऐसे में राजस्थान के जो लोग हैं जीत कर जो आए हैं उनको केंद्रीय कैबिनेट में मौका मिले, ऐसा आप मानते हैं? अब वो जो बनाने वाले हैं वही लोग बता सकते हैं, इसलिए हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो यहीं तक सीमित था, हमने काम कर लिया, हमारी जनता ने काम किया, हमारे कार्यकर्ता ने काम किया, हमने उनको भरपूर धन्यवाद दिया। ये हमारी टीम राजस्थान हमने अब उनके सामने पेश कर दिया। मिशन 25 को लेकर आप शुरू से होपफुल थे? बिल्कुल होपफुल थे, और अब हमने नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचा दिए हैं। अब उनका चॉइस है क्या करते हैं। I'm only representing the people of the moment, which is Rajasthan, and all our workers who have done this wonderful magic, which was long coming. And I've been seeing it over the last year, and I think that they've done a fabulous job, and I have thanked them all from the bottom of my heart. And of course has put a huge responsibility upon our shoulders, which is very scary, and for which I'm going to really work hard. We saw you doing extensive traveling in this time period that you got between the assembly elections and the Lok Sabha elections, gauging the mood of the people. What are the factors do you think that worked for you in Rajasthan? As I said, people like, first of all, that you talk to them, and then people like that you tell them the truth. So if something is not going to happen, there is no harm in saying to them, look, I'm going to try, but it looks a little difficult. People understand that. But when they know it's difficult, and sometimes they do it to see what you're going to say, and you tell them a jolly good lie, and say to them, don't worry, of course it's going to get done. And they gauge you, they're not stupid. People are not stupid. It's us who don't understand that. And the sooner we understand it, the better we are going to be able to engage with them. Nationally as well, it's looking very good for the BJP. So how do you see that affecting Rajasthan, the equation between centre and Rajasthan this time? I think it's going to be a very good thing, because federalism had lost its edge over this Congress-Gandhi era. And I think the time has come to bring it back, because that is actually the backbone of our country. And we don't need to beg for our rights. And it wasn't just Rajasthan, it was a lot of states that had to do this. I believe now, under Mr. Modi, we will not be having to beg for it, because he himself has seen very closely, been a chief minister. That is going to change. And so Rajasthan will naturally benefit from it. But along with that, so will the other states. What factors do you think working for the party at the centre? The change was something that everybody wanted. They were fed up. They were fed up to their teeth of all the lies. And are giving them chance after chance after chance, it seemed that it didn't work. They've seen Mr. Modi and his way of working. They know that he's tough. And they know that despite everything, you need a tough leader. You don't appreciate leaders who buckle and hand out doles. Because the dole, after all, is going from their pocket. They understand that. So they want somebody who understands the economy and who has some goals and who will committed to put the country on its feet, and because of that, so will the states be on their feet. But you've had your set of challenges during this election, the ticket distribution. After that, especially the seat of Barmer, there were questions raised on it. There were never any questions raised. It was always very clear. The questions were raised by a lot of people who didn't know what the equations in that district were. And for that, you all have to travel to a place like Barmer, which is of course a very difficult area. Not many people would go there.
So it's very nice to sit in air-conditioned drawing rooms and discuss issues which were discussed threadbare. Okay, but we who actually travel in the area and are close to the grassroots and know what the situations are, were very, very clear about where we had to go, and it was the judgment of the people of this. I mean, and our workers of that, and we took it up from there and backed it with our surveys. You feel you So stand it isn't vindicated? something that came, out of a hat, and of course we are vindicated. Thank you for talking to us. That's all. Thank you. सबसे पहले आपको बधाई। क्या आपको पता था कि 25 सीटें आएगी या आप सिर्फ मोरल बूस्टिंग के लिए 25 कहते थे? नहीं, हमने आपको सबको कहा कि हमारा मिशन 25 है। इसके अंदर हमने आपको बता दिया था कि कार्यकर्ता की बहुत मेहनत है। इससे मैंने बताया कि अपने प्रदेश की चाहत है, और इसमें मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी का जादू। ये सब चीज़ों ने मिक्स होके एक ऐसी मैंने हवा बनाई, जिस हवा के अंदर आपने देखा कि 25 की 25 सीटें आ गई। तीसरी बार आपने इतिहास बनाया है। पहली बार जब आप सत्ता में आई तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाई, उसके बाद आप अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री 163 सीटें लाई, अब 25 की 25। क्या लगता है ये आपका करिश्मा है? मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि जनता ने अपना मान के इतना प्यार दिया है, और हमको उस पर खड़े उतरना पड़ेगा। आसान नहीं है, परंतु कोशिश में कभी नहीं छोड़ेंगे। जब इतनी बड़ी जीत आ जाती है मैडम, तो जिम्मेदारी का एहसास कितना लग रहा है? क्या कुछ कहा ना दबाव मैंने, लग रहा है? डर लगता है। इतना बड़ा मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लोगों ने कितना हम पे विश्वास किया है, उस विश्वास को हम कैसे रिटर्न करेंगे? ये परिस्थितियाँ जो राजस्थान की हमारे पास छोड़ी गई हैं, वो इतनी तो विकट हैं, हम सब उनसे जूझ रहे हैं। परंतु मैंने प्रॉमिस किया है, इसलिए जितनी मैं जुट के कर सकती हूँ और बदलाव ला सकती हूँ, उसमें मैं कमी नहीं छोड़ूंगी। 25 सांसद हैं आपके पास, उम्मीदें क्या है अब राजस्थान को? क्योंकि चप्पे चप्पे में अब आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, राजस्थान 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखेगा? अब ये तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को जो अभी तक था, उससे कई गुना ज़्यादा आगे इकोनॉमिकली साउंड प्रदेश देने का हम कोशिश करेंगे, और इसका फ़ायदा हमको स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल सेंटर से भी हमको मिलेगा। एक डिसिप्लिन व्यक्ति अगर उसको हेड कर रहा है, जैसे मिस्टर मोदी हैं, तो मैं समझती हूँ कि लोग भी लाइन में आके काम में जुटेंगे। ये काम जब होगा तो उसका फ़ायदा राजस्थान को मिलेगा, दूसरे स्टेट्स को भी मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टेट, कई स्ट्रॉन्ग स्टेट्स विल हेल्प to create a strong center, and vice versa. A strong center will help to create stronger states. इतने सारे विधायक, इतने सारे सांसद, क्या अब आप लॉबिंग करेंगे? केंद्र में आपके मंत्री हैं। ये मेरा काम नहीं है अब मोदी जी का। हमने तो 25 के 25 का बल उनके झोली में डाल दिए हैं, और वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। विवाद भी बहुत हुए जब आपने कई लोगों को टिकट दिए थे, जैसे बाड़मेर की सीट है, दौसा की सीट है, तो आरोप प्रत्यारोप हुए, कुछ विरोध के स्वर हुए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जो कहा आप उस पर खरी साबित हुई? ये तो एक परिवार है, इसमें होंगे। अगर हमारे बीच में विरोध नहीं होता तो आज 25 सीट भी नहीं आती। अगर हमने डिस्कशन नहीं एक दूसरे से किया होता तो इस परिणाम पे कैसे पहुंचते? ये तो उस डिस्कशन का, उस वाद विवाद का, उस डिस्कशन का एक स्वरूप है, फल है, जिसकी वजह से सब लोगों के व्यू लेने के बाद हम लोगों ने 25 टिकट्स पेश किए, जिसकी वजह से आज हमको विक्ट्री मिली। विधानसभा चुनाव जीत गए, लोकसभा चुनाव जीत गए, अब आगे क्या एजेंडा है? अब आगे काम, अब काम, हमें काम और सिर्फ काम। होपफुली जनता के आंखों में खरे उतरेंगे। थैंक यू। थैंक यू। ये है राजस्थान।